नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ, और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सभी लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, जय हर हर महादेव, हर हर और बाकी सब भी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, और क्या क्या बोलते हैं सर, शलाम, गुड इवनिंग, किम छो। तो प्रदीप जी, मीरा रोड में जो स्थिति हुई उत्पन्न, उसको बहुत जल्दी नियंत्रण में ला दिया गया। आदरणीय सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने फटाफट एक्शन लिया, और वो एक्शन जो है वो रंग लाया, और फटाफट वहां पर शांति की पुनः स्थापना हो गई। एग्जैक्टली सर। आदरणीय सम्माननीय जरंगे पाटिल साहब, जो इस वक्त मुंबई की तरफ कूच कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रिपब्लिक डे वाले दिन हम लोग आएंगे, और किसी की बात नहीं सुन रहे हैं फिलहाल। तो वो तो कह रहे हैं कि भाई हम तो आएंगे, 10 लाख लोग तो होंगे हमारे साथ। ठीक है, 1 करोड़ नहीं होंगे, पहले तो 3 करोड़ की बात कर रहे थे, अब 10 लाख पर आ गए हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट 1 मिलियन पीपल, 1 मिलियन इज अबाउट 10 lakhs. What I can't understand is, let the government come out with a GR. वो कह रहे हैं कि जो भी मराठा समुदाय के जितने भी लोग हैं उनको आप कुनबी का सर्टिफिकेट दे दीजिए, तो अपने आप ओबीसी कोटा जो अभी भी मौजूद है उसमें रिजर्वेशन मिल जाएगी। बट कैन द गवर्नमेंट डू दैट? व्हाट डू यू थिंक? Can they really do that? Sir, क्योंकि अभी भी there is every chance that Prime Minister Modi has done the impossible, wherever you talked about, and if he has the will that he wants to help this particular government, now he has got one of his favorite chief ministers here, that is Eknath Shinde ji, और कोई भी ऐसे मंच नहीं है जहाँ पर एकनाथ शिंदे जी और मोदी जी साथ में आए। मोदी जी has not praised the CM, and that's some very rare things that happen where Prime Minister Modi is concerned. He never praises He anyone. doesn't praise any chief minister he's ever praised. He has never praised Yogi Adityanath either. He's only sacked the prime minister, chief ministers who probably think they did it well. That is Shivraj Chauhan was one of the finest examples. He believed his Priya Didi scheme or jo bhi tha, that was making wonders, and that Ladli Didi. Ladli Didi had won in the elections, and probably Mr. Modi showed him the space and his place, saying that you are not the chief minister. Now, because he's been doing, and I think I personally got a gut feeling that everything is going as per the plan, sir, where Maratha Arakshan is concerned. Jarange Patil kahan se achanak paida ho gaya, means no, we never knew him before this particular agitation. He was never known as a great Maratha leader. Now he is broomed and everybody is garnered. There seem to be someone behind who's managing all the moves that is happening. और जो आज कल में पहुंचेंगे यहाँ पर मुंबई में, and I don't think everything is working to a plan. जी, I think everything is working to plan, and the crowds will be so much. कल holiday है, 26 Jan. Not much by evening. There will be some major decision that is taking place. I hope so. And as Jarange Patil said that I will not leave until I get a favorable decision, or is ready to lay down his life. No, but as far as Mr. Eknath Shinde is concerned, कहते हैं भाई favorable decision तो आपके पक्ष में ले लिया है, और क्या चाहिए? What more do you want? और फरवरी में वो कहते हैं कि भाई we are holding a special session of the assembly, but I don't know how far that special do you assembly. require a special session of the assembly? But hang on a minute. You don't know if the special session will have any powers at all, because considering the internal letter of the Election Commission of India, which has been sent to all the officers, they are supposed to prepare themselves for the elections to be held probably on April 16th. So which means by first week of February, the electoral code of conduct would have been declared. So the assembly per se cannot pass any decision at all. And as you were about to point out, you don't need a special session of the assembly to pass a GR. Government resolution is passed, and then Gee. No, but I suppose they want to. I suppose they want to pass an act under the Maharashtra state government. Perhaps. I think that may be the reason. But the only thing is that I hope you are right, and this is being done according to plan. Because if it is not, we have a problem. Sir, I can just decipher things moving.
छगन भुजबल जी इस तरफ आए हैं. छगन भुजबल जी is leading the OBC agitation. He is leading the OBC agitation, and suddenly you find that many cases against him has been withdrawn from the Bombay High Court. एक के बाद inferences. And some files have gone missing. They've lost. That's either you are let off or you are. So you have a lot of things happening. एक के बाद, and when you place the puzzles in its place, you find that things are really working to this. So let's ask our friend from the Congress, Balaji Gade Patil साहब. Balaji Gade Patil साहब, नमस्कार. सर नमस्कार सर. आप कैसे हैं सर? कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया सर, आप बोलिए. बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच सर. जय सिया राम. सर यू आर लुकिंग, सर आप बहुत बढ़िया दिख रहे हैं सर. अरे क्या बात. थैंक यू सो मच सर. बहुत शुक्रिया आपका कि आपको लग रहा है कि मैं बढ़िया दिख रहा हूँ. लेकिन ये शो आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है. मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं. मुझे लगता है राम मंदिर के बनने की खुशी अभी तक आपके चेहरे पर है, जैसे सब सारे हिंदुस्तानियों के है. लेकिन सर ये बताएं कि ये जो उसके बाद बात करेंगे राहुल गांधी जी के बारे में, न्याय यात्रा के बारे में, लेकिन उसके पहले जो जनाब हमारे जरंगे पाटिल साहब हैं, वो कह रहे हैं कि 10 लाख, कभी 1 करोड़, कभी 1.5 करोड़ मराठा को लेकर के वो मुंबई में आ रहे हैं कल. तो उसकी आवश्यकता क्या पड़ गई? मतलब क्या सरकार ढीली पड़ गई? सरकार को मालूम नहीं था ये होने वाला है? या फिर जैसा शक है, कहीं ये नूरा कुश्ती तो नहीं हो रही कि जैसी वो यहाँ पर आएंगे 10 लाख लोगों के सामने एकनाथ शिंदे जी जाएंगे और डिक्लेयर कर देंगे कि भाई हमने ये सब पास कर दिया. गड़े पाटिल साहब. नहीं, अभी जो मराठा मार्च जो और आंदोलन जो चल रहा है, उनकी जो बुनियादी मांग है वो है कि हमको ओबीसी से रिजर्वेशन चाहिए मराठाओं को. तो सरकार के पास इसके बारे में ना कोई ठोस उसके बारे में कुछ उपाय किए हैं, ना ही कुछ स्टडी है, ना सरकार ने की कुछ उसके ऊपर काम किया है. हम आयोग बना रहे हैं, हम सर्टिफिकेट के लिए खोज कर रहे हैं, हम फिर से समिति बिठाएंगे. तो ये समिति पे समिति बिठाने का काम सरकार कर रही है. और रही बात, जैसे आपने जिक्र किया अभी कि ये लोगों के सामने जाके जाहिर कर देंगे, इनको बुलाया है, तो इस आंदोलन के जो नेता है जरंगे पाटिल, उनकी जो मांग है वो स्पष्ट है कि हमको ओबीसी से ही आरक्षण चाहिए मराठाओं को, हम दूसरा आरक्षण नहीं लेंगे. तो सरकार के पास तो विकल्प नहीं है, और सरकार की नियति मुझे नहीं लगती कि वो ओबीसी से मराठाओं को आरक्षण देंगी. अभी ये आंदोलन अंतिम चरम पर है. जो मराठा समाज है, इसमें सर इसका मैं बाइफर्गेशन करना चाहूंगा. इसमें से 10% मराठा समाज जो है, जिन्होंने सालों से, वर्षों से सत्ता अपने घर में रखी है, महाराष्ट्र का नेतृत्व किया है, और 90% मराठा समाज जो है वो गरीब है, वो किसान है, दिहाड़ी मजदूर है. वो मराठा समाज इन 10% मराठा समाज है, इनसे बिल्कुल डिफरेंट है. तो ये जो लड़ा है, ये जो आंदोलन है, उन 90% मराठाओं का है जो सत्ता से दूर है, जो आर्थिक विकास से दूर है, जो एजुकेशनल विकास से दूर है. लेकिन उनको कुछ दिया नहीं जाता, क्योंकि दिख जाते हैं 10% लोग आगे, क्योंकि मंत्री मराठाओं के ज्यादा है, एमएलए मराठाओं के ज्यादा है, एमपीज मराठों के ज्यादा है जरूर है. लेकिन ये सत्ता में बैठे वाले मराठे और गरीब मराठे, इनमें बहुत डिफरेंस है. इन 10% लोगों को देख के हम पूरी जाति का एक व्याख्या नहीं कर सकते, पूरे जाति की परिभाषा नहीं कर सकते हम. तो ये आंदोलन अभी कल देखते हैं सरकार किस तरह से इसके साथ. बालाजी गड़े पाटिल साहब, लेकिन बैकवर्डनेस की जो डेफिनेशन है वो क्लियरली डिफाइंड है. जो बैकवर्ड कमीशन है उसके मुताबिक बैकवर्डनेस की जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत क्लियरली डिफाइंड है. एंड दैट हैज नथिंग टू डू विद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. It has to do with backwardness, social backwardness. यानी अगर मराठा जो है, एक छोटी सी बात है, अगर मराठा जो है गरीब हो गए हैं, तो क्या वो मेत्रानी का काम कर रहे हैं, मेत्र का काम कर रहे हैं, क्या जमादार बन गए हैं? नहीं बने हैं. क्या वो नाई का काम कर रहे हैं? क्या वो मोची का काम कर रहे हैं? क्या उनके समाज में, पूरे गांव के या बाकी समाज में उनका शोषण हो रहा है? इसको लेकर के बैकवर्डनेस डिफाइन की जाती है सर. तो या तो बैकवर्डनेस की डेफिनेशन चेंज की जाए, वरना ओबीसी में कैसे आएंगे? गड़े पाटिल साहब.
सर मैं इसको एक रेफरेंस देना चाहूंगा। जी बोलिए। महाराष्ट्र में जितनी मराठा लोग हैं उनमें से अगर हम रीजन वाइज देखा जाए, जैसे विदर्भ है, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र जिसको, और कोंकण, इन 5-6 रीजन में अगर देखें तो विदर्भ का जो मराठा है उन लोगों ने कुणबी के नाम से रिजर्वेशन ले लिया है। जी सर मैं मराठवाड़े से आता हूं। विदर्भ और मराठवाड़े में रोटी बेटी की होती है। हमारी बेटियां वहां ब्याही जाती है, उनकी बेटियां यहाँ पे ब्याही जाती है। तो कुणबी और मराठा जो भी है, इन दोनों की बेटियां ब्याही जाती है और इनको इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं कहा जाता, ये सेम कास्ट मैरिजेस है। तो आपने जो जिक्र किया कि बाबा इनको सोशली बैकवर्ड कैसे कहा जाए, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन कुणबी समाज जो है, जो हमारे भाई है, हमारे सगे है, हमारे सगे संबंधी है मराठाओं के यहाँ के, तो उनका मानना यह है कि मराठाओं का कि आज अगर उनके साथ हमारा रिश्ता है, ब्लड रिलेशन है, तो हम उनसे अलग कैसे हो गए। तो सर यही बात है और इसी के ऊपर ये लड़ा और ये आंदोलन। हाँ, ये भी कहा गया है कि जरंगे पाटिल साहब ने ये भी कहा है कि भाई आप देखिए, अगर आपसे कुछ और नहीं हो रहा तो सभी मराठाओं को आप कुणबी की डेफिनेशन दे दीजिए और सबको आप जी तहत कुणबी रिजर्वेशन के तहत, आरक्षण के तहत सबको आरक्षण दे दीजिए। सीधी बात है। दैट कुड बी अ सॉल्यूशन, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन मुझे मालूम सर नहीं है इसमें हम कुछ अलग मांग ही, इसमें जो मराठाओं की जो मांग है वो कुछ अलग मांग ही नहीं रहे हैं। अगर विदर्भ के कुणबियों के साथ मराठवाड़े के मराठाओं की अगर रोटी बेटी होती है तो उसमें हम एक ही है, तो उनको जो कुणबी सर्टिफिकेट मिला है मराठवाड़े के मराठवाड़ों को दिया जाए। तो इसका सर एक थोड़ा समय सर एक रेफरेंस देना चाहूंगा। निजाम के राजवट में मराठवाड़ा था, हैदराबाद स्टेट में, जिसके रिकॉर्ड्स ब्रिटिशों की तरह पूरे करेक्ट नहीं है। तो मराठवाड़ा रीजन में इसके रिकॉर्ड्स कुणबी होने के मिल नहीं रहे, ये बात है। बाकी सब जगह पे ब्रिटिश थे, उनके रिकॉर्ड्स बहुत क्लियर है, इसलिए उन सबके रिकॉर्ड्स अभी पश्चिम महाराष्ट्र अगर देखा जाए, वेस्टर्न महाराष्ट्र और इधर अदर रीजन में, तो वहां पे मिल गए। तो बस यही मांग है। So in effect, let me understand this before प्रदीप जी comes in. कहने का मतलब ये हुआ कि आज मराठाओं की मांग ये है, यानी जरंगे पाटिल साहब की मांग ये है, और जो भी मराठा है उनकी मांग ये है कि आप बाकी सब चीज छोड़ दीजिए, आप ये कानूनी दावपेच खत्म कीजिए, आप सभी मराठा को कुणबी मान करके आप उनको आरक्षण दे दीजिए, बस खत्म। That's it. बस Is that what we are looking at? No, आप देखेंगे शाहू महाराज जी और जरंगा पाटिल जी का जब एक बार मीटिंग हुआ था जलना में, तो उन्होंने क्लियर कट ये कहा था कि कुणबी और मराठा दोनों एक ही है। उन्होंने क्लियर कट, शाहू महाराज जी ने जरंगा पाटिल जी को बोल रहे थे कि कुणबी मराठा दोनों एक ही है। 6 महीने हम लोग खेती में काम करते हैं और 6 महीने जंग में जब चले जाते हैं, तो दोनों सेम है। तो प्रॉब्लम था कि नारायण राणे जैसे कुछ लोग जो मराठा समाज के, जो आपने कहा जो पावरफुल डोमिनेंट पोजीशन होल्ड होते हैं समाज में, तो उनको देख के 90% को हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। तो कुणबी और मराठा दोनों एक ही है आपके हिसाब से, और जो भी हमने संभाषण देखा जरंगे पाटिल जी और शाहू महाराज जी के, तो इसको थोड़ा विस्तार से समझा दिए। सर नारायण राणे जैसे जो नेता है, उनका काम है कि अगर उनको बीजेपी ने मिनिस्ट्री दी है तो उनका मालिक है बीजेपी। वो वहां पे जिस तरह से काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो पेड़ काम करते हैं। तो उनको मिनिस्ट्री दी है, तो वो और उनके 2 बच्चे सुबह उठने के बाद उनका जो भी मालिक है उससे वो आदेश लेते हैं, और जिसके खिलाफ बोलने को कहा जाए उसके खिलाफ वो बोलते हैं। ना कोई सेंस है, ना कोई संस्कार उनके बोलने में है, ना कोई गरिमा, चाहे फिर वो हाउस हो या फिर जमीन हो या फिर मीडिया हो, वहां पे एरोगेंटली वो बोलते हैं। ये जो उन्माद है, जिसको हम उन्माद कहेंगे, ये सत्ता से आया है, तो वो उनका काम है। और रही बात नारायण राणे साहब की, यही शख्स, इन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जब वो हमारी पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में थे। तो उस वक्त इन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। तभी उन्होंने ही कहा था कि कुणबी और मराठा एक है। वो खुद का अगर रिपोर्ट पढ़ ले तो उनको आईने के सामने खड़े होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद आदमी कितना गिरा हुआ हो सकता है, वो खुद को देख ले तो उनको समझ में आ जाएगा। और ऐसे नेताओं की वजह से ही बाकी के मराठाओं को रिजर्वेशन से दूर रहना पड़ा, क्योंकि वोटिंग के लिए जाति का यूज करना और बाद में उसके आर्थिक
एजुकेशनल और बाकी के विकास को प्रदीप जी, नेताओं ने किया है। बालाजी गाडे पटेल साहब, अभी अब सुप्रिया सुले जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, सब एक ही कहना है कि फडणवीस जी ने मराठा, डांगर, लिंगायत, मुस्लिम रिजर्वेशंस और सब जितने भी है सेगमेंट, वो सबको फडणवीस जी ने धोखा दिया। मगर बीजेपी का कहना है अगर मराठाओं को रिजर्वेशन दिया तो फडणवीस जी के जमाने में हुआ था, और आगे जाके आप पे आलोचना करते हैं, बोले 27 साल से आप क्या कर रहे हो? 27 साल से आपको ये पता नहीं था कि ये मराठा और ये कुणबी दोनों एक है, जो आज आप लोग प्रोफेस कर रहे हो, प्रोपोगेट कर रहे हो, ये 27 साल भी पहले भी कर सकते थे, तो ये क्यों नहीं किया? बीजेपी का कहना है, पूछ रहे जितने भी बीजेपी। और अभी जो जिस आपने जैसे देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में कहा, देवेंद्र फडणवीस जी ने आरक्षण दिया, ये अगर कहना है तो, और बीजेपी अगर कहती है कि हम ही आरक्षण के साथ है और बाकियों ने कैंसिल किया, बुनियाद जो आरक्षण की है सोशल और इकोनॉमिक, सोशल बैकवर्डनेस जिसको अभी सर ने जिक्र किया था कि समाज में जो बैकवर्ड लोग हैं, उस बुनियाद के खिलाफ ही इनकी विचारधारा है। जैसे संघ ने ओबीसी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन निकाल दिया है, इसमें जो मेन डिबेट है वो है कि कोर्ट कह रही है कि हम रिजर्वेशन दे देंगे, हमको एम्पिरिकल डेटा दीजिए। right. अभी बीजेपी कह रही है, बीजेपी ने कहा है कि भाई ओबीसी का रिजर्वेशन हमने थोड़ी कैंसिल किया है, वो तो कोर्ट ने डिनाई किया है, और कोर्ट कह रहा है कि हमको एम्पिरिकल डेटा दे दीजिए, हम रिजर्वेशन दे देंगे। तो बात यही है कि रोहिणी कमीशन को एम्पिरिकल डेटा मिल जाता है, लेकिन कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट सबमिट नहीं करती। तो ये बीजेपी की चाल है, इनको रिजर्वेशन खत्म करना है, और जैसे कि मनुवादी विचारधारा है उसी तरह से इनकी जो देश की जो व्याख्या है आरएसएस की, उसी में रिजर्वेशन आता ही नहीं है। तो ये धीरे धीरे सर 27 साल का एक्सप्लेनेशन क्या है आपके पास? बिकॉज इसका भी जवाब तो देना ही पड़ेगा ना कि आप कांग्रेस रूलिंग महाराष्ट्र स्पेसिफिकली इतने साल, पवार साहब और बड़े बड़े दिग्गज लीडर जो कांग्रेस के थे, विलास राव जी सब, और उसके बावजूद मैं कांग्रेस का प्रवक्ता भी होने के नाते मैं पहले ऐसी संगठनों में काम किया हूं, कांग्रेस के पहले इन सभी संगठनों से ही मैं उभरा हूं, उस वही विचारधारा से। तो मैं आज ये यहाँ पे कहता हूं कि शायद वो लोगों में कुछ कमी रह गई होगी, उन्होंने ये नहीं दिया होगा, लेकिन ये जरूरत है। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, ये आई एम नॉट बायस्ड अबाउट दैट, लेकिन मैं ये बहुत ही जिम्मेदारी के बात कर रहा हूं कि उनको भी ये देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या खामियां रह गई उस वक्त, लेकिन अभी ये जरूरी है और ये होना चाहिए। सर पिछले 27 सालों में जो जमीनें थी मराठाओं के पास, जो भी कुछ, उनमें से जिसके पास 10 एकड़ थी वो अभी 1-1, 2-2 एकड़ पे आ चुके हैं। और पंजाबराव जी देशमुख बहुत ही बड़े नेता थे, एक सोशल वर्कर भी रहे थे, कृषि मंत्री भी थे एक सेंट्रल में। तो उन्होंने विदर्भ के मराठाओं को समझाया कि आप कुणबी कह के आरक्षण लीजिए, तो उन्होंने उनका माना। मराठवाड़ा के मराठाओं को नारायण राणे जैसे उस वक्त के जो राह दिखाने वाले जो नेता थे, वो हमारे एरिया के नहीं है मराठवाड़ा के, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, उन जैसे राह दिखाने वाले नेताओं ने, जिस वक्त लोग समाज पढ़ा लिखा नहीं था, उस वक्त गलत राह दिखाई, और उन्होंने कहा कि हम क्यों रिजर्वेशन ले, आप तो ग्रेट मराठा हो, क्यों रिजर्वेशन ले। तो फिर इस तरह से उनको इस हक से दूर रखा गया। तो अगर कुणबी कह के विदर्भ का मराठा रिजर्वेशन नहीं लेता तो ये अलग से अमेंडमेंट की बात होती। अभी अमेंडमेंट नहीं करनी है, सिर्फ वो हमारे भाई है, वो ले रहे तो हमको दीजिए, ऐसा इस आंदोलन के माध्यम से। तो कहने का मतलब ये हुआ गड़े पाटिल साहब, कहने का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन तो इसका बहुत सिंपल है, इसका तो इसका सॉल्यूशन तो ये तो मामला सुलझाया जा सकता है 1 मिनट में। एकनाथ शिंदे साहब को क्या करना है, कल आजाद मैदान में जाना है, सबके सामने सिर्फ अनाउंसमेंट करनी है, आज से आप सब लोग कुणबी हैं, थैंक यू, मैटर इज ओवर, दैट्स इट। सो व्हाई डजंट ही डू दैट? व्हाई इज ही नॉट डूइंग इट? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। शायद उनकी नियति नहीं होगी कि मराठाओं को रिजर्वेशन दे। पिछले 40 सालों से इस मुद्दे के ऊपर राजनीति होती आ रही है। बहुत सारे नेता इस आंदोलन से उभरे, एमएलए हुए, एमपी हो गए, मिनिस्टर हो गए, लेकिन उन्होंने फिर से पीछे मुड़ के समाज की तरफ कभी देखा नहीं। तो अभी समाज की भावनाएं
बहुत गड़े तीव्र पाटिल है। साहब। पता नहीं सरकार के मन में क्या चल रहा है, लेकिन गड़े पाटिल साहब, जो गड़े सर पाटिल सर साहब। सर एक मिनट में बोलिए, सर एक बोलिए, मिनट बोलिए, कंक्लूड बोलिए। करना चाहूंगा। बोलिए, बोलिए, प्लीज। अभी इस आंदोलन से जो रिजर्वेशन मिलेगा, मैं अभी एक कांग्रेस की प्रवक्ता के माध्यम से जब देखता हूं तो आरक्षण में हर जाति को भिड़ाया है बीजेपी ने, लेकिन अगर बुनियादी बात के देखी जाए तो प्राइवेटाइजेशन हर सेक्टर में आया है, और कंट्राटी जिसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भर्ती जिसको बोलती है, वही हो रही है। जहां पे रिजर्वेशन लागू नहीं है वहां पे भी हर जाति के आरक्षण की मांग करने वाले आंदोलनकर्ताओं को देखना चाहिए कि भाई हम तो लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने तो सब तरफ का आरक्षण ही निकाल दिया है। ये अरे भी सरकारी बुनियादी मुद्दा नौकरियां है ही नहीं आपने सर। जो- सर सरकारी नौकरियां हाँ। बची नहीं हैं, तो आरक्षण का हाँ, फायदा बची कहाँ नहीं है। मिलने वाला है? और दूसरी Exactly, चीज है, exactly. सरकारी कॉलेजेस इसलिए बनाए नहीं जा रहे हैं, सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस बन रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ और पूछने जा रहा था। आई वाज ट्राइंग टू जी, आस्क यू सर। समथिंग एल्स सर। द फैक्ट रिमेन्स दैट राइट नाउ Mr. Eknath Shinde himself, right here, very close to us, यहीं पर जब इतनी बड़ी उनकी सभा हुई थी, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने सौगंध खाई थी कि मैं आरक्षण देके रहूंगा, ऐसा उन्होंने कहा जी। था। तो चलते हुए भाषण से जी, चलते हुए भाषण में उन्होंने रोका अपने आप को, वहां पर गए, अपनी आंखें पोंछी और उन्होंने सौगंध खाई। तो मुझे लगता है कि 26 जनवरी से ज्यादा अच्छा कोई दिन नहीं होगा ये अनाउंसमेंट करने के बिल्कुल। लिए कि भाई आपकी जो मांग है हम पूरी करते हैं। आप आज से हर एक मराठा को कुणबी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको लगता है वो ऐसा करेंगे? बिल्कुल। मुझे तो नहीं लगता कि उनकी नीयत ऐसी है, लेकिन करेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ। चलिए, और let's see what happens tomorrow. पॉसिबिलिटीज, जैसे बजाज साहब ने बोला, पॉसिबिलिटीज बहुत एक्सीलेंट और स्पेक्टेकुलर इसलिए लग रहा है बिकॉज उन्होंने कसम किए खाए थे कि करूंगा। और सर कांग्रेस अभी सर वो मोदी जी के साथ, सर वो मोदी जी के साथ जुड़ गए हैं, वो किसी की भी कसम खा सकते हैं और कोई भी नारा और घोषणा कर ऐसा सकते भी हैं। हो सकता है कल जीआर पास करे। पॉसिबिलिटीज क्या है? कल जीआर भी पास कर सकते हैं कैबिनेट बैठ के। नहीं, अभी तो अपने गांव में खेत में है, तो उधर से ही उन्होंने कुछ बाइट दे दी है। हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि उनको इन सभी आंदोलनकर्ताओं के बारे में कुछ ज्यादा हमदर्दी है। लेकिन कल और तो अभी उनको तो यहाँ रहना अभी पड़ेगा मैंने सर। आपके सर, यहाँ कल पे तो रहना लाइव आने से पड़ेगा। पहले देखा कि कल तो रिपब्लिक डे है, ही हैज टू बी हियर। जी यस सर, आ जाएंगे। वो क्या सरकार का सभी है, हेलीकॉप्टर है, चॉपर है, लोगों का पैसा वो शासन अपनेदारी के नाम के माध्यम से वो भी उड़ा रहे हैं, तो वो आ ही जाएंगे, बराबर है आपका। लेकिन जिस मुद्दे के ऊपर मैं आना चाहता हूं कि इस आरक्षण के आंदोलन में ओबीसी मराठा अपने भीतर झगड़े हो रहे हैं। उसके बाद धनगर रिजर्वेशन की भी बात है, जिस फडणवीस का जिक्र आपने किया सर प्रदीप जी, उन्होंने कहा था 2014 में जैसे हमारी सरकार आएगी वैसे पहले कैबिनेट में हम धनगरों को रिजर्वेशन दे देंगे, धनगर समाज को। नहीं उन्होंने 2014 में कहा था, नहीं दिया। तो अभी 2000 हाँ नहीं दिया सर, अभी 2024 आ रहा है। वो पुराना तो इसी तरह से पुराना ओबीसी का रिजर्वेशन है, दे वांटेड अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आपने उनको ओबीसी का रिजर्वेशन वो भी 3.5% के करीब दे रखा है, विच इज नॉट इनफ। और जो वीजेएनटी हैं वो तो उनको तो बेचारा, उनकी तरफ तो बेचारा कोई देखता ही नहीं है। वंचित जाति नोमैडिक ट्राइब्स जो हैं उनकी तरफ तो कोई देखता ही नहीं है। चलिए, वी टॉक अबाउट दैट, बट सर चलते करना चाहता सर दिस विल गो ऑन। आई वांट टू नो इन टर्म्स ऑफ मिस्टर राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा है उसका मकसद क्या है? राहुल गांधी जी का खुद का मत क्या है इस आरक्षण को लेकर के, और बाकी जो मुद्दे चल रहे हैं इस वक्त भारतवर्ष में, उसके बारे में जरा अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो जरूर बताएं प्लीज। बिल्कुल सर, न्याय यात्रा का जो उद्देश्य है, उन्होंने आपने देखा कि भारत जोड़ो के माध्यम से जो उद्देश्य लेकर हम 4-5 हम चल रहे थे, उसी तरह से हम न्याय यात्रा के माध्यम से बेरोजगारी के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, आतंक के खिलाफ, जाति धर्म और संप्रदाय के आधार पर जो भी दंगे और भेदभाव होता है उनके खिलाफ, और बहु बेटियों के इज्जत के ऊपर जो भी हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ, इन सभी मुद्दों को, किसानों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, इन सभियों को लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे जा रही है। और राहुल जी की जो आपने पूछा कि रिजर्वेशन के ऊपर हो या फिर इसके ऊपर क्या राय है, तो राहुल जी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो लिखा उस संविधान के ऊपर आस्था रखते हैं, उसको मानते हैं, उसको उन्होंने पढ़ा है और वो समझते भी है।
और उनके पास असली डिग्री भी है, इसलिए वो समझते हैं। तो उस संविधान की बुनियाद ही है यह आरक्षण, जैसे कि कलम क्रमांक आर्टिकल नंबर 340, 341 और 342 में कहा गया है, भारत की जाति निहाय सामाजिक व्यवस्था है, तो जाति निहाय ही रिजर्वेशन देना पड़ेगा। और यही मानना राहुल जी का है कि जाति की उन्नति के लिए जो पिछड़े वर्ग है उनको समानता लाने के लिए रिजर्वेशन देना चाहिए, यही उनका मानना है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जिस तरह से बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री हर स्टेट के बौखला गए हैं, उनके चेहरे पे उनके डिसीजंस में वो डर दिखाई दे रहा है। राहुल जी को मंदिर में जाने से रोका गया। हिम्मत बिस्वा जी उन्होंने ये भी कह दिया कि गुवाहाटी से अगर चले आते हैं तो हम उनको अटक कर लेंगे, केस ठोक देंगे उनके ऊपर। तो ये देश किसी के बाप का नहीं है। इस देश की हर सड़क से कोई शांतता के माध्यम से मोर्चा लेकर जा सकता है, आंदोलन कर सकता है, ये अधिकार संविधान ने दिया है। लेकिन सर गणे पंडित साहब, मैं आपसे पूछता हूं, ये तो समझ गया, अगर अरेस्ट हो गए तो आप जीत गए, प्रॉब्लम ही नहीं। अगर राहुल गांधी जी अरेस्ट होता है तो पूरे कांग्रेस जागरूक हो जाएंगे पूरे देश में, और जो 53 से 270 पॉसिबिलिटी हो जाता है। और अब दूसरा मैं पूछा, ये जैसे बजाज साहब ने पूछा, ये आंदोलन जो जरांगे पाटिल का जो है मुंबई में, यहां कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है। ये तो आपको मानकर चलना पड़ेगा। जब आपने एक्यूज किया था स्पीकर नार्वेकर वहां से ऑर्डर लेके यहां पर पढ़ रहे थे, तो क्या वो जीआर भी ऐसे ही तैयार होके वहां से आएंगे और शिंदे जी ये पढ़ के सुना के, ये एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी जो पॉजिटिव हम लोग सोच रहे हैं कि कल के कल या परसों तक वो जीआर पढ़ के जरांगे पाटिल जी और पूरे मराठा समाज के आंदोलन खत्म और ये जीआर का विक्ट्री लेके आगे बढ़े, बिकॉज पॉजिटिव। मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास कोई सोल्यूशन है, क्योंकि अगर मैं सरकार का कैबिनेट देखता हूं, क्यों आप भी देख लेते हैं, तो उनमें से कोई इतना बुद्धिमान मुझे नहीं मुझे लगता नहीं कि जिनके पास इसका कोई सोल्यूशन है। तो कल ही देखेंगे कि सरकार की क्या नीति है, अभी उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहूंगा। आपका कहना है कि स्पीकर नार्वेकर जो ऑर्डर पड़ा वो दिल्ली से आया, वो ऑर्डर था, है कि नहीं? जी सर, जी वो उसी तरह से पढ़ रहे थे। मुझे तो लगता है कि जैसे एग्जाम में बच्चों के सामने 10 मिनट पहले पेपर खोला जाता है, वैसे उन्होंने खोला होगा, क्योंकि जिस तरह से वो पढ़ रहे थे वो फर्स्ट टाइम रीडिंग था ऐसा लग रहा था। तो वो सभी, जैसे नारायण राणे का आपने जिक्र किया, चाहे फिर वो उनका बच्चा हो या फिर नार्वेकर जी हो, इनके सबकी स्क्रिप्टेड है सर। यहां से आगे जाके थोड़ा सा मैं बाहर विषांतर हो जाएगा, लेकिन बता दूंगा, जितने भी बीजेपी के एमपी एमएलएज है, उनके ट्विटर के हैंडलर पे भी कौन सी चीजें डालनी चाहिए, उसके भी डिजाइन्स और मैसेजेस उनको मिलते हैं। तो ये सर, तो कल ये पॉसिबिलिटी है, कल या परसों की ये दिल्ली का कोई ऑर्डर यहां पर पड़े? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि शांति नहीं चाहती बीजेपी, इस देश में शांति बिल्कुल नहीं चाहती। ये इसी तरह से दंगे भड़काएंगे, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है वैसे वैसे हर एक जाति के में दंगे भड़काएंगे, क्योंकि उनको उसके अलावा कुछ आता नहीं है। अभी राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया है, तो उसके बाद अभी फिर से ये जाति का मुद्दा चलता रहेगा। और ये 2024 के इस इलेक्शन में खून और दंगे के ऊपर इलेक्शन लेंगे। लेकिन जहां तक के कुनबी डेजिग्नेशन का प्रश्न है, अगर मराठाओं को कुनबी का टाइटल दे दिया जाता है तो वो सोल्यूशन बन जाता है। लेकिन बाकी सब लोग क्या करेंगे? जो बाकी ओबीसी जातियां हैं, जैसे छगन भुजबल साहब ने अपनी समता परिषद के द्वारा बहुत प्रोटेस्ट किया था जब ये कहा गया था कि इनको ओबीसी में रेजिग्नेशन मिल जाएगा, रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो उनकी तो पूरी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जो दांगड़ रिजर्वेशन है, जितने दांगड़ हैं वो सब लोग खड़े हो जाएंगे कि भाई हमारा क्या। ये या तो आप मराठा रिजर्वेशन 50% से ऊपर अलग से दीजिए, लेकिन इनको ओबीसी में अगर आप रिजर्वेशन देंगे तो उतनी सीटें हमारी कम हो जाती हैं सर। नहीं सर, अभी इसमें जो हमारा कहना है कि मराठा ओबीसी से अलग कहाँ है। अगर हमारा विदर्भ में 10 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है सर, इतने जिले हैं, 2 जिसको महसूल विभाग बोलते हैं, अमरावती और नागपुर, ऐसे 2 महसूल विभाग है। इतना बड़ा विभाग है जो मराठवाड़ा से बहुत बड़ा है। तो वहां के मराठा अगर कुनबी बोल के रिजर्वेशन ले रहे हैं तो हमको, हमारा मानना यह है एज एन मराठा, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब से रिजर्वेशन पॉलिसी लागू
हुई है तब से मराठवाड़े के मराठाओं को रिजर्वेशन ना देके उनके ऊपर अन्याय हुआ है, तो उनको और स्पेशल कुछ रिजर्वेशन देना चाहिए अगर मिलता है तो। Correct. The law has तो to ये be the कहना same. चाहूंगा। The law has to be Yes. the same for everyone. Yes. That's right. यस That's right. So एग्जैक्टली। you- और सर एक मिनट सर, वो जो भुजबल साहब का आपने जिक्र किया था वो भूल ना जाऊं, मैं वो बताना चाहता हूं। भुजबल साहब को तो सर अभी विरोध, जैसे आपने नार्वेकर जी का कहा, प्रदीप जी ने, कि उनका स्क्रिप्ट कहां से आया था, तो भुजबल साहब का भाषण का स्क्रिप्ट भी वहीं से आता है। और जिन महात्मा फुले के आदर्शों की बात वो खुद करते जी। हैं, उन्हीं आदर्शों के खिलाफ उनकी खुद की अभिवर्तन है, उनका भाषण है। और सर फिर से उनको जेल में भी तो नहीं जाना है ना, इसलिए वो बोलेंगे। ना बहुत सारे बरी भी हो गया हाईकोर्ट से, उन्होंने बहुत सारे चार्जेस, उनका ये भी रिलीफ भी मिला है उनको जी। तो भुजबल साहब, और फिर अब पडलकर जी क्या करेंगे? वो भी जो पडलकर जी धांगर कम्युनिटी के वो सेकंड बिगेस्ट कम्युनिटी है, धांगर कम्युनिटी। सर उससे झूठा आदमी मैंने अपनी जिंदगी में बहुत, मुझे जितने झूठे लोग दिखे उसमें सबसे टॉप मोस्ट मैं उनको देना चाहूंगा। धनगर रिजर्वेशन के आंदोलन का एक उनका भाषण यूट्यूब पे मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि भाई मैं अगर किसी पार्टी के साथ मैं चला जाऊं तो कुछ उन्होंने थोड़े से अलग लफ्ज में कहा था, तो उन्होंने खुद अपने समाज को धोखा दिया है। तो वो गोपीचंद पडलकर, मैं नहीं मानता कि उनका उतना दर्जा है कि उस मुद्दे के ऊपर हम बात करें। तो आपके मुताबिक कुनबी नाम से ही इज अ पपेट ऑफ देवेंद्र फडणवीस। राइट, तो कुनबी गोपीचंद पडलकर इज अ पपेट ऑफ देवेंद्र फडणवीस। कुनबी नाम से सभी मराठाओं को आरक्षण मिल जाएगा आपके मुताबिक, या मिलना चाहिए? यस मिलना चाहिए या मिल जाएगा? अगर सर इसमें सर एक ही मिनट लूंगा, एक बात बताऊंगा। इसमें जो जातियां हैं उसमें 80 या 83 नंबर के ऊपर जो कॉलम है, 83 शायद जी, ओबीसी के इसमें, इसके अंदर, तो उसमें लिखा गया है मराठा कॉमा कुनबी मराठा कॉमा कुनबी, ऐसा लिखा गया है। तो अगर व्याकरण की बात कही जाए तो कॉमा को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता। हमारा मानना यही है, पहले से 40 सालों से ये जो लड़ा चल रहा है, कि वहां का कॉमा निकाल दो, मतलब मराठा इज इक्वल टू कुनबी। हाँ So मराठा कुनबी and Kunbi is equal to Maratha. That's it. हाँ यस हाँ Right. All the very best to you, sir. Thank you very much for joining us. यस And Thank you, sir. And really and truly lovely talking to you. सर जी बताएं। हेलो सर, और एक बात मैं कहना चाहूंगा। आज बोलिए। वोटर्स डे है जी, मैं भारत के सभी मतदाताओं को आज के वोटर दिन की, मतदान दिन की शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहूंगा कि फी द पीपल ऑफ इंडिया, ये भारत के प्रियम्बल में जो लिखा है, इस देश का लोकतंत्र लोग चलाते हैं और लोग ही नहीं बचेंगे, गुलाम बनेंगे तो इस देश का लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। आपके माध्यम से उन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि ये देश सभी का है और इस देश के राजा लोग हैं। तो ना मोदी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी इस देश का मालिक है, तो इस देश के मालिक लोग हैं। उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि बस आप खुद को लोग समझ लीजिए और आप ही इस देश के राजा हैं। बस सर ये कहना था सर। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या बात है साहब, थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय सिया राम, जय भवानी, जय भवानी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। Gade Patil Sahab is very confident and he's very vocal and very articulate about Maratha reservations. Exactly. As he says, Kunbis are Marathas, Marathas are Kunbis. That's it. End of story. So rightfully speaking, Pradeep ji, you may be absolutely right that tomorrow Mr. Eknath Shinde might actually announce, he might say, we are designating all of you Kunbis. आज से आप सब लोग कुनबी हैं. That's it. And then what जिसको happens? नहीं लेना है ना ले। If people that have allegiance to Narayan Rane and that entire group, Yes. they don't want. That's it. it. Don't take it. No, but all I'm trying to say is, what happens then? What happens then to the agitation led by Mr. Chhagan Bhujbal? What happens then to the agitation which I'm sure our friend who will come now, Mr. Lakshman Hake, will lead with regard to VJNT and the Dhangal community? Because with so many Kunbis coming in the OBC reservation, the cake becomes that much less for everybody else. Already you have a problem. You don't have any jobs. There are no jobs.
what do people do then? Pradeep ji. सर यहाँ पर मेन चीज जो मराठा गरीब लोग के जो 90% वो कहते हैं कि एक्चुअली दे आर कुनबीज, दे शुड बी ट्रीटेड एज कुनबीज, दे वांट प्लेस फॉर एजुकेशन। Yes. जो हाई जो एजुकेशन का उनका जो कैपिटलाइजेशन फीस जो हम लोग बोलते हैं कि डोनेशन देना पड़ रहा है, ये सब दे डोंट वांट इट। दे वांट कि हमारे बच्चे ढंग से पढ़े, अच्छे ढंग से पढ़े, उनको एक्सेस टू नाइस एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, इजीली अवेलेबल हो। बिकॉज महाराष्ट्र में जिस प्रकार से ये प्राइवेट बॉडी जो चला रहा है इंस्टीट्यूशंस को, ये गरीब का कहाँ एडमिशन मिलेगा उनको? एक्चुअली जो सामाजिक न्याय की बात करें वो मिल ही नहीं रहे हैं। तो एटलीस्ट दैट एजुकेशन एक्सेस, एक होप जो आ रहा है कि गरीब से गरीब आदमी को लिटरली फ्री एजुकेशन जो मिले, दैट शुड बी द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव फॉर एवरीबॉडी। बट एटलीस्ट दे होप दैट ये हो जाएगा। बिकॉज जितने भी मराठा थे, हम लोग चाहते हैं कि हाँ अभी हमारा इंजीनियर बन जाएगा, लड़का इंजीनियर बन जाएगा, अभी हमारा डॉक्टर बन जाएगा, ये ख्वाब लेके जा रहे हैं। तो ख्वाब एक बहुत बड़ा चीज है, इट इज कॉलिंग जो एक्चुअल इक्वालिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं। तो दे सी ए रे ऑफ होप। बाकी इज द गवर्नमेंट्स जॉब टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर jobs, as much as jobs that is necessary for the state. And जिस प्रकार से अभी बोल रहे हैं number 1 in FDI, number 1 where economic development is concerned, Maharashtra, those governments' job to create the jobs. That's right. So they should be creating the job without any problem. Correct. But ये गरीब से गरीब लोगों को they see a ray of hope that हमारे बच्चे कम without donation पढ़ेंगे, education nearly मुफ्त होगा. They see a big hope in that for the future. And they see that 27 साल से हम डिप्राइव हो चुके हैं, हम लोग डिजर्विंग थे, नहीं मिला। Now this is but Pradeep ji, embroidered like a volcano within them. In all the engineering colleges, in all the medical colleges, everywhere, where are the reservations? These are not government colleges, these are private colleges. Private colleges में वैसे भी reservation नहीं होते। Let's be very clear. At the end of the day, the government has to create more colleges. The government has to create more educational institutions where reservation policy applies. अब वो आप अगर create नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पर थोड़ा बहुत रिजर्वेशन का आपको एक खाका भरना है, वो आप भर देते हैं। लेकिन इसमें कुनबी समाज जो है, और उन्होंने आज कह दिया कि हम सब लोग मराठा हैं। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जिस मराठा समाज से जो भी नेतागण हैं, उनको अगर ऐसा लगता है कि हमारी बेइज्जती हो रही है, अगर आप हमें कुनबी बुला रहे हैं तो आप रिजर्वेशन मत लीजिए, प्लीज डोंट टेक आरक्षण मत लीजिए। बट I think the best opportunity for Mr. Eknath Shinde will be tomorrow. If he can go there to Azad Maidan and announce कि भाई आज से आप सब लोग कुनबी हैं, आपको कुनबी रिजर्वेशन मिल गया कल से, thank you, that's it. And let them issue a GR and let them convert that into an act. जब भी असेंबली मिलती है, स्पेशल सेशन जब भी आता है असेंबली का, इनफैक्ट दे कैन कॉल फॉर अ स्पेशल सेशन. व्हाई does he need to wait for a special session for February? He can call it on the 30th of January. He can call it on 28th of January. Yes, exactly. 27, 28, 29. You just need to give a notice of 48 hours. Exactly. That's it. And this is a very urgent issue. So Absolutely. everybody has So to they can. comply. In fact, they can get it done on Sunday. Yes. Where is the problem? Yes. On the positive side, this is the most easily attainable. We have solutions. So I don't think Mr. अभी जो sequence of events अब तक आ रहा है महाराष्ट्र में, I don't think there is no solution in this. Probably we are working towards the solution in 2 days. Yes. In a few days. Yes. Today, tomorrow, day after tomorrow, you will have a solution. Yes, I think so too. I think so too. There will be Because a solution which will lead to other problems, and those problems will then have to be resolved. And this precision से the central government is working. This precision to day basis, time to time, day to day, उस एजेंडा लेके जो central government is working, I don't think that they will let go this opportunity, because this is a fantastic opportunity when 90% of the Marathas feel deprived, as Balaji Gadekwadi. So which means the entire Maratha vote shifts towards Mr. Eknath Shinde and Mr. Devendra Fadnavis. Yes, that's yes, it. बिल्कुल. मामला खत्म. बिल्कुल. So which is why they are not really bothered कि दंगड़ समाज क्या करेगा और माली समाज क्या करेगा और लिंगायत समाज क्या करेगा और मुस्लिम समाज क्या करेगा. उनसे उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके वोट उनको आते हैं तो अच्छा है, नहीं आते हैं तो भी ठीक है. They'll be able to win with just the Maratha vote, very frankly, and the CKP vote. The Muslim vote जो है, I think it's
it's not there anymore. The Yes. appeasement जो होता था पहले मुस्लिम अब नहीं है। appeasement और वो requirement that ये 18% 14 से 20% वोट हमको चाहिए और इसके लिए कुछ ल्योर होना चाहिए. Nobody is working on that as of today. I mean, nobody is even thinking about those lines, because when you're thinking on those lines, you're losing the majority votes. So nobody is even talking about these things. Now, what happens, as you said, if Maratha community en masse find that their solution, they feel that हमारा जो objectives था वो achieve हो गया, जो 27 साल से वो बोल रहे कि 27-30 साल से जो हम वंचित थे, बहुत सारे employment में reservations. Now the point is here, they are bothered about the government jobs which is there in the government. जो आप collector बोलो, deputy collector बोलो, जी. MPSC पुलिस के officials बोलो, there is where the jobs are. People there are looking at that, you know, at last we have something inside that is achievable. हमारी ये गवर्नमेंट जॉब तो है, ये तो सरकार रोक नहीं सकता. There is a recruitment every year. So these are the things that is luring, and if they find even a little bit of opportunity there, I think this government has done will do a great. Because if you see, the Congress doesn't have an answer कि आप अगर कहता कि मराठा और कुणबी एक ही है, आप सब कुछ सोच रहे हैं, तो 27 साल आप कर कह रहे थे. Why didn't you convince, then government convince itself that ये है. और ये विदर्भ में आज थोड़ी है, विदर्भ में कब से चल रहा है कि they already कुणबीस. तो the same example could have been incorporated in Marathwada, and Vilas Rao was from Marathwada. जितने अपने तो these things could have, they don't now. If Eknath Shinde hits a master stroke, you know, nor Sharad Pawar, nor the Congress, nor Uddhav Thackeray was never part of it. They don't have any excuse or any reasoning to give why 27 to 30 years you didn't do it. जी. Now अभी तो बोलना ठीक है कि आप प्रॉमिस क्यों करते हो, अगर दे दिया तो हो गया काम. I mean, then 2024 is over. That's right. And if he does it, that's it. End of story. it'll be a clean sweep. Do we have Mr. Lakshman Hake with us? I think they're trying. He's in an area where there is no network. They're still trying. He was in a no network area even yesterday, and they're still trying. So I really would like to know what Mr. Lakshman Hake has to say about it, because I'm reasonably certain if something like this happens, if they are all given Kunbi certificates, Mr. Lakshman Hake will have something to say about it, and the Dangar community will be on the street. So how will you appease the Dangars? In spite of the fact that they are not as many as Marathas, but they still constitute a substantial proportion of the population of Maharashtra. They believe they're second biggest. Yes. Now, if they do, you'll have a problem. I mean, how are you going to solve the problem? And even as far as Mr. Chhagan Bhujbal is concerned, his Samta Parishad, he will not be able to face them, because after all, he had said very clearly that OBC का जो रिजर्वेशन है 27%, उसके अंदर से आप निकाल करके मराठा रिजर्वेशन नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था. अब वो अपने ही समाज का सामना कैसे करेंगे? I don't think it is so simple. As Mr. Gade Patil said, कि उनके लिए भी ऊपर से चिट्ठी आती होगी भाई, लेकिन he has to answer his own community. What will he do? He just can't run away from that, because he's on record. Pradeep ji. So I think the solution, I think we always discussing the solution, because we never saw such a big Maratha agitation. There were Yes. Maratha agitations, but such a very well organized, very well coordinated, and time to time just precision से ये चल रहा है. We never seen this kind of a Maratha agitation, and we never saw such a leader like Jarangir Patil, totally devoted to the cause. He has got no personal ambitions. He has got no personal political ambitions. His only ambition is ready to lay down his life. He says, I am ready to lay down my life, I am ready to fast unto death. And if we are coming to Mumbai, that they are reaching tomorrow, I will not return alive Ji. without attaining the task of reservations. And he says, I don't know whether I'll live or not. Yes. I don't know. That's what he very says. clear. It's very clear. So if you've got such a determined leader who is ready to die for the cause, there's nothing you can do. I mean, the government has to relent, and I know, I have a gut feeling that this government already has a solution up its sleeve, and whatever the opposition
whatever you call the opposition says that ये order दिल्ली से आया है उसको पढ़ रहे हैं, मगर अगर दिल्ली से कोई भी order आया है और पढ़ रहे हैं और success है, then you have been successful. That's it. Immaterial from wherever the order comes. Right, and at the moment